Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope all of you along with your family are in best of everything. So I am with you again with my new video and with a new topic, a new subject, and as you can see on the board, it is about clause and conjunction. Clause and conjunction. So both of them are different topics, but we have joined them just for the introduction of conjunction and clause because they are pretty much integrated to each other. So let's start our lesson. What is conjunction? Conjunction is a word and it is one of the parts of speech. Conjunction is one of the parts of speech. It is a word that links two sentences. It is a linking word, like preposition. But the difference between preposition and the conjunction is that preposition joins two parts of one or same sentence. But the conjunction links two different sentences to make a longer sentence. For example, first I write two different sentences and very short sentences to make you understand so that you can easily understand what is conjunction, how it joins two sentences, and then what is clause. Go away one sentence and don't come back the other sentence. One sentence, go away, full stop. Don't come back, full stop. So when we join both of these sentences, go away and don't come back. Okay? So this word that joins two sentences to make a longer sentence. So we put one full stop after it. Now it is one sentence, but a longer sentence. But in this longer sentence, which has been made with the help of a conjunction, these two parts are the clauses now. One clause, another clause. So this sentence contains two clauses. It means a sentence, or you can say a smaller sentence, when become a part of a larger sentence, it is called clause. Earlier here, this was a sentence, go away. This was another sentence, don't come back. But when we join it with conjunction, and so it became a larger sentence, and both those smaller sentences turned into clauses. So this is clause. Okay? So here we have a few more conjunction to join different sentences and make a longer sentences. You can see and, but, or, because, so. So like this, my sister is married. One sentence. She lives abroad. My sister she lives abroad.
So we can join both these sentences like this. My sister is married and she lives abroad. Okay? My sister is married and she lives abroad. Or you can say, you can skip this subject because in both the sentences the subject is same. So here we are using she for my sister. My sister and married and lives abroad. Okay? So here again and is the conjunction. My sister is married. Now is a clause. And she lives abroad is also a clause. But when we skip she or subject, so lives abroad is also can be called a clause. Right? Now I am going to erase. So I can give you a few other examples of joining two sentences with conjunction and. We stayed at home. We watched television. We stayed at home. We watched television. So we stayed at home and watched television. We skipped the subject we from the second sentence. दूसरे सेंटेंस से हमने सब्जेक्ट को निकाल दिया वी को, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है. तो एंड के साथ जब भी हम सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे और दो सेंटेंसेस जो है वो उनके सब्जेक्ट अगर सेम होंगे तो सेकंड वाले सब्जेक्ट्स में से सेंटेंस में से सब्जेक्ट को स्किप कर देंगे और दरमियान में एंड लगा देंगे. तो इसी तरीके से आई गिफ्टेड हर अ पेन, शी गेव मी अ वॉच. ये मैं लिख देता हूँ सेंटेंस. I gifted her a pen. She gave me a watch. These are the two sentences. आप देख रहे हैं कि ये दो अलग अलग sentences हैं. और जब हम इनको conjunction and से join करेंगे तो हम कहेंगे I gifted her a pen and she gave me a watch. Right? अब आप कहेंगे कि ये आपने दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट स्किप क्यों नहीं किया. सब्जेक्ट इसलिए स्किप नहीं किया क्योंकि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं. और ये एंड के साथ ही होता है कि जब दोनों एक जैसे सेंटेंस हों, इक्वल उस पे हों, तो जो है वो फिर हम एक जैसे सब्जेक्ट को जो है वो हों तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट स्किप कर देते हैं. लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है. तो अब आपकी समझ में आ गया कि यहाँ पर एंड कंजंक्शन और अब ये दो सेंटेंसेस जो पहले अलग अलग थे अब ये क्लॉज बन गए, एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा बन गए. क्योंकि अब ये एक ही सेंटेंस है तो अब ये दो हिस्से जो है वो इसकी दो क्लॉजेस कहलाएंगे. तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है. एंड में तो बिल्कुल एक जैसे आइडियाज़ होते हैं. ठीक है. लेकिन जब हम इसमें बट इस्तेमाल करते हैं कंजंक्शन के तौर पे तो कॉन्ट्रास्ट आइडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं. यानी आइडिया दूसरा वाला जो होता है वो उसके बरक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल दे हैव गॉट अ कार. दूसरा सेंटेंस है दे डोंट यूज इट वेरी ऑफन.
but they don't use it very often. ये भी मार्कर जो है वो थोड़ा सा स्टार्ट है तो इसलिए इतना बारीक है. दे हैव गॉट अ कार. वैसे तो ये आप देखें कि दो अलग अलग सेंटेंस है ना, कंप्लीट सेंटेंस है. दे हैव गॉट अ कार कंप्लीट सेंटेंस है. दे डोंट यूज इट, ये भी कार के लिए है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है. लेकिन जब हमने इसको दरमियान में कंजंक्शन बट लगा दिया, उनके पास कार है लेकिन होने के बावजूद यानी उसके बरक्स डिफरेंट आइडिया है. एक उलट वाली बात है कि जब कार है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते. बट दे डोंट यूज इट वेरी ऑफन, बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभार जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है. इसी तरीके से आई बॉट अ न्यूज़ पेपर, आई डिडंट रीड इट. देखिए, आई बॉट अ न्यूज़ पेपर, मैंने एक अखबार खरीदा. आई डिडंट रीड इट, अखबार खरीदा क्यों. यानी पहला एक्शन जो है तो दूसरा एक्शन जो है वो पहले एक्शन के बरक्स है, उसमें तजाद है. तो फिर बट से जो है वो, बट की मीनिंग भी आपको बहुत आसान है, हमेशा इस्तेमाल में आती है. आई बॉट अ न्यूज़ पेपर बट आई डिडंट रीड इट, मैंने एक अखबार खरीदा लेकिन पढ़ा नहीं उसे. तो यहाँ पर आई डिडंट रीड इट एक क्लॉज, और आई बॉट अ न्यूज़ पेपर दूसरी क्लॉज, और ये बट जिसने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा, ज्वाइन किया, वो कंजंक्शन. ठीक है. तो इसी तरीके से हम और पे आ जाते हैं. ओ आर और. अब एक सेंटेंस में आपको लिख के दिखाऊंगा तो दूसरा ज़बानी मैं बता दूंगा. और के बारे में जैसे डू यू वांट टू प्ले, डू यू वांट टू प्ले एक क्वेश्चन, आर यू टायर्ड दूसरा क्वेश्चन. ठीक है. लेकिन जब इसमें आप ओ आर लगा देते हैं तो डू यू वांट टू प्ले और आर यू टायर्ड, आप थके हुए हैं या खेलना चाहेंगे. तो ये जो है वो यानी ऑप्शन के तौर पे या अल्टरनेट के तौर पे जो है ना वो और इस्तेमाल करते हैं हम, या की मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं. जैसे बट जो था वो लेकिन की मीनिंग में था, एंड और की मीनिंग में इस्तेमाल होता था उर्दू का. और ये इंग्लिश वाला ओ और जो है ये या की मीनिंग में शुरू इस्तेमाल होता है, या आप जो है वो खेलना चाहेंगे या आप थके हुए हैं. इस तरीके से दूसरा सेंटेंस मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ. शैल वी वॉक टू द होटल और डू यू वांट टू गेट अ टैक्सी. Shall we walk to the hotel or do you want to get a taxi? कि हम पैदल चलें. शैल का ये वाला इस्तेमाल जो है शायद हमने आपको नहीं पढ़ाया होगा. शैल जो है वो क्वेश्चन के तौर पे जब शुरू में इस्तेमाल करते हैं हम वी के साथ. इसका मतलब है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसका ओपिनियन ले रहे होते हैं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या हम ऐसा करें या ना करें. शैल वी वॉक टू द होटल, हम होटल जो है वो पैदल चलें, और डू यू वांट टू गेट अ टैक्सी, या आप चाहते हैं कि हम एक टैक्सी कर लें और टैक्सी ले लें. ठीक है. इसी तरीके से आ जाइए सो और बिकॉज के ऊपर. सो और बिकॉज जो है वो एक दूसरे की बिल्कुल उलट मीनिंग में इस्तेमाल होती है. बिकॉज माने
क्योंकि आपको पता ही है मीनिंग, और सो माने इसलिए। तो दोनों ही टाइप के जो सेंटेंसेस हैं तो वो मैं आपको जो है वो सो और बिकॉज के साथ एक साथ ही जो है वो समझा दूंगा। तो द वाटर वाजंट क्लीन, वी डिडंट गो स्विमिंग। The water wasn't clean, we didn't go swimming. The water wasn't clean, so we didn't go swimming. चूंकि वाटर जो है वो पानी जो है वो साफ नहीं था, बल्कि चूंकि का लफ्ज़ को मैंने अपनी तरफ से इस्तेमाल कर दिया, सेंटेंस में नहीं आया। वाटर साफ, पानी साफ नहीं था, इसलिए तो ये रिजल्ट के लिए इस्तेमाल होता है, नतीजे के लिए इस्तेमाल होता है। तो नतीजा क्या निकला? We didn't go swimming. नतीजतन हम स्विमिंग के लिए नहीं गए। अब इसी सेंटेंस को अगर आप उलटने से मुराद ये है कि ये वाली क्लॉज हम पहले लिख लें। We didn't go swimming because the water wasn't clean. तो we didn't go swimming, हम स्विमिंग के लिए नहीं गए क्योंकि वजह क्या थी? The water wasn't clean, क्योंकि पानी साफ नहीं था। तो so और because एक दूसरे के बिल्कुल उलट जो है वो कंजंक्शन है। तो अगेन अब मैं आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सो जो है वो इसने यहाँ पर इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, जोड़ के एक बड़ा सेंटेंस बनाया है यहाँ पर बिकॉज ने। तो और फिर ये जो छोटे सेंटेंस मिल करके दो सेंटेंसेस एक बड़ा सेंटेंस बना है, तो ये छोटे सेंटेंस यहाँ पर क्लॉज कहलाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये भी, ठीक है। एक सेंटेंस में आपको और लिख के बता देता हूँ। इट वॉज लेट। अच्छा, ये तीसरा सेंटेंस होगा, मैं आपको बताया। आई ओपन द विंडो, इट वॉज टू हॉट। आई ओपन द विंडो, मैंने खिड़की खोल दी। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि बिकॉज इट वॉज टू हॉट, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी। ठीक है, आई ओपन द विंडो बिकॉज इट वॉज टू हॉट। इसी सेंटेंस को अगर हम इट वॉज टू हॉट से शुरू करते हैं, so I opened the window. It was too hot. बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लिहाजा इसलिए। तो नतीजा क्या निकला कि I opened the window। इस बात का, गर्मी ज़्यादा होने का नतीजा निकला कि I opened the window। इस वजह से, इसलिए, इस तमाम मीनिंग्स के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं होता कि एक सेंटेंस में सिर्फ दो ही क्लॉज हों, एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकती है। ठीक है, अभी जो हमने आपको बताई हैं वो इस टाइप के सेंटेंसेस या इस टाइप के क्लॉजेस बताई हैं
कि जिनमें दोनों सेंटेंसेस को अगर कंजक्शन हटा के अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों सेंटेंसेस जो है वो अपनी अपनी कंप्लीट मीनिंग देते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाती है। ऐसे क्लॉजेस कि जिनको अलग अलग भी कर दिया जाए, कंजक्शन बीच में से हटा के, तो वो कंप्लीट सेंटेंस और कंप्लीट सेंस दे रही होती है। इनको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस कहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसके अलावा भी और किस्में हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपको डिटेल में जाएंगे तो फिर वो आप थोड़ा सा उलझ जाएंगे। अभी जितना समझा रहे हैं इतना ही समझ लीजिए। एक दो सेंटेंस में आपको ऐसे बता देता हूँ कि जिनमें हमने एक से ज़्यादा कंजक्शन इस्तेमाल किए हैं, तो डेफिनेटली दो से ज़्यादा सेंटेंस भी इस्तेमाल हुए हैं। जैसे इट वॉज लेट एंड आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इट वॉज लेट एक सेंटेंस, आई वॉज टायर्ड दूसरा सेंटेंस, सो आई वेंट टू बेड तीसरा सेंटेंस। तो ये तीसरा सेंटेंस हम मुराद ये कि अब चूंकि ये सेंटेंस अब चूंकि एक ही है ये, तो ये इसमें तीन क्लॉजेज हैं जो कि हमने दो कंजंक्शन से जोड़ी हुई। ओके, अगला सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। आई ऑलवेज एंजॉय विजिटिंग लंदन बट आई वुडंट लाइक टू लिव देयर। आई ऑलवेज एंजॉय विजिटिंग London, but I wouldn't like to live there। अभी खत्म नहीं हुआ ये। Because it is too big। Because it is too big। तो अब आप यहाँ पर देखें कि एक तो ये बट कंजंक्शन है और दूसरा जो है ये बिकॉज कंजंक्शन है। तो इससे पहले कि इट इज़ टू बिग एक सेंटेंस था, आई वुडंट लाइक टू लिव देयर दूसरा सेंटेंस था, और ये भी एक सेंटेंस था, आई ऑलवेज एंजॉय विजिटिंग लंदन। लेकिन अब ये तीनों जो है वो चूंकि एक सेंटेंस बन गए हैं कंजंक्शन की मदद से, तो अब ये तीनों क्लॉजेस कहलाएंगे। तो ये तीन क्लॉजेस वाला एक सेंटेंस, दो सेंटेंस हमने यहाँ पर आपको बता दिए। ये हमारी वीडियो जो थी वो तारुफी वीडियो थी, एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कंजंक्शन के बारे में और क्लॉजेस के बारे में। और अब जो मज़ीद हम वीडियोस अपलोड करेंगे वो क्लॉजेस के मज़ीद जो किस्में हैं वो उनको बारी बारी आसान तरीके से आपको समझाएंगे, और कंजक्शन जो इम्पोर्टेंट किस्म के कंजक्शन है और मज़ीद उनका इस्तेमाल भी आपको बताएंगे, मीनिंग वगैरह उसकी बताएंगे। तो दोबारा मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। उस वक्त तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।